now we will start illustration number 28. Okay, here mutual fund, okay, approved mutual fund, that is the open ended equity oriented scheme, okay, Chanakya opportunity fund, that is not relevant. Investors, okay, that is three plans. First of all, plan S, that is dividend reinvestment plan. After that, plan T, that is bonus plan, and plan U, that is growth plan. Okay, at the time of IPO, initial public offer, on 1st April 2002, it means this scheme was started on 1st April 2002. Mr. Gautam, Mr. Gaurav and Mrs. Ratna, three investors invested 1 lakh each and chosen the T, U and S. Remember, plans are given as T, U and investors are given in a T, U and S. So just टेक केयर वाइल राइटिंग द प्लान एंड इन्वेस्टर्स. ओके, सो ये जो मिसेस रत्ना है उसने प्लान एस लिया है, मतलब फर्स्ट प्लान डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान. मिस्टर गौरव ने क्या किया है, प्लान यू यानी कि लास्ट प्लान ग्रोथ प्लान लिया हुआ है. और गौतम ने क्या किया है, प्लान टी, दैट इज बोनस प्लान. ओके, it is advisable that don't think about investors, just think about plans. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का एनुअल परसेंटेज, उसके बाद बोनस का और उसके बाद ग्रोथ प्लान का. ओके, बाद में कंक्लूजन में चाहिए तो लिख सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टर ज़्यादा बेनिफिट में है. ओके, सो इन्वेस्टर्स आर नॉट दैट मच रिलेवेंट, जस्ट फोकस ऑन द प्लान्स एंड इट्स नेम्स. ओके, so we got the information that investment was made on 1st April 2002, right, and amount of investment is 1 lakh. Just remember this and name of our plans. Now this is the important data, that is the dates are given, dividend percentage and here bonus ratio. Okay, in growth plan that is totally different. Okay, dividend reinvestment and bonus plan we have seen in the question number 27, like that we have to calculate in question number 28. Growth plan is simple and less calculations are there, that is the last part of this question. So first of all, ignore the education says. After that, on 31st July all the investors redeem all the balance units. Okay, so investment was made in 1st April 2002 एंड रिडम्पशन वॉज डन, यानी कि उन लोग ने पैसा वापस लिया 31 जुलाई 2012 को. सो ये किस लिए हम लोग के काम का है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए. कैलकुलेट द एनुअल रिटर्न ऑफ ईच ऑफ द इन्वेस्टर. ओके, as we have calculated in first question, that is question number 27. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट. ओके, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा तो वो एग्जेम्प्ट ही होने वाला है. उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर रहेगा वो 10% से टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, इसका मतलब 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा. सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज 0.2%. अर्लियर इट वॉज 2% एंड हियर 0.2%. सो वाइल रीडिंग द क्वेश्चन बी केयरफुल. ओके, ओनली ऑन सेल और रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स. ओके, so let's start the answer. First of all, plan S, that is dividend reinvestment plan. Okay, plan S, dividend reinvestment plan. Amount invested, that is 1 lakh. Okay, in 1 lakh का इन्वेस्टमेंट है. नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग को क्या चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए. ओके, दैट इज 10 which is given in the question. See, face value is given in the question, that is rupees 10. Here amount invested is 1 lakh and its NAV, opening NAV starting का face value 10. okay, so number of units 10,000 units. okay, now time period. अभी टाइम पीरियड लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 में ईयर्स में फाइंड आउट किया था, बिकॉज years means period was starting from April and it was ending on March, so it is easy to calculate in years, right? But in this question redemption period is in between, that is 31st July, right? So we have to calculate in months. okay, first of all अप्रैल से लेके मतलब 1st April 2002 से लेके हियर 31st March 2012 तक हम लोग ईयर्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, सिंपल है. 2012 क्यों लिया, क्योंकि जुलाई है ना, तो हम लोग को मार्च तक हम लोग को चाहिए. ओके, सो 1st April 2002 फ्रॉम दैट अप टू 31st March 2012 तक कितना होता है, 2012 ये ईयर है, उसमें से 2002 माइनस करो, 10 ईयर्स होता है. ओके, हम लोग को जो भी पीरियड है वो मंथ्स में चाहिए. ओके, एक साल में 12 मंथ्स है, सो 10 ईयर का टोटल 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया तो 120 मंथ्स. ओके, 10 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स तो कितना हो जाएगा अपना 120 मंथ्स, राइट? आई होप यू आर गेटिंग मी. ओके, 2002 से लेके 2012 तक
मतलब मार्च से लेके अप्रैल से लेके मार्च तक हम लोग को बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स मिला 10 ईयर्स, राइट। 10 ईयर्स का टोटल मंथ्स कितना रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 करके 120 मंथ्स, ओके। अभी ये ऊपर का मंथ्स मार्च तक काउंट किया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स, सो 120 प्लस ऊपर का 4 दैट इज 124 मंथ्स। आप आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जैसा हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया, डेट्स लिखना है, जो जिधर भी रेट है परसेंटेज डिविडेंड का, सो वो सारे डेट्स हम लोग ने लिख के लिया है। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स स्टार्टिंग वाला दैट इज 10,000 यूनिट्स, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फेस वैल्यू, सो नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इज 10, इसके ऊपर ये परसेंट अप्लाई करेंगे 20%, सो डिविडेंड अमाउंट इज 20,000, ओके। डिवाइडेड बाय एनएवी भी हम लोग ने ये जो रेट है उसके सामने वाला एनएवी प्लान एस का लिया है, क्योंकि प्लान एस है वो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान है, ओके। डिवाइडेड बाय 30.70, जिसको क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आया उसको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। 47 टोटल यूनिट्स दैट इज 10,000 प्लस 651.47, टोटल कितना है 10,651.47, ओके। अभी हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है, सो 10,651.47, ये सिर्फ वही प्रोसेस हम लोग को करना रहता है। 10,651.47 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस परसेंटेज दैट इज 70%, ओके। 74,560.29 divided by this 58.42, so number of units he is getting that is 1,276.28, okay. So total initially 10,651.47 प्लस ये टोटल यूनिट्स हम लोग का है 11,927.75, ओके। बुक का जो आंसर है कुछ अलग ही मेथड करके दिखाया है, क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ अलग किया है, क्वेश्चन नंबर 28 में कुछ अलग किया है। वी आर फॉलोइंग सेम मेथड एज लाइक क्वेश्चन नंबर 27, ओके। सो परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को मिला 47,711, ओके, डिवाइडेड बाय दिस 42.18 दैट इज 1,131.13, ओके, 13 टोटल 11,927.75 प्लस 1,131.13, इट कम्स टू 13,058.88, ओके, 13,058.88, ओके। जस्ट कैरी फॉरवर्ड करना है और कुछ नहीं, just multiplied by face value that is ₹10 multiplied by this percentage, so amount of dividend 32,647.20 divided by 46.45, so 702.85, right. Next 13,058.88 plus 702.85, okay, 13,761.73 कैरी फॉरवर्ड करो, ओके। उसके बाद फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई और परसेंटेज से मल्टीप्लाई, सो अमाउंट ऑफ डिविडेंड 55,046.92 48.10 1144.43, right. Just take a total. Finally, total number of units that investor is getting under dividend reinvestment plan is 14,906.16. चेक करेंगे हम लोग का सही है क्या, सी करेक्ट आंसर, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एनुअल रिटर्न परसेंटेज प्लान एस का, ओके। प्लान एस जो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान है उसका एनुअल रिटर्न परसेंटेज, नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम्ड जो हम लोग ने फाइंड आउट किया था, ओके, 14,906.16 यूनिट्स, इतना हम लोग को रिडीम करने के लिए मिला है। और एनएवी रिडम्पशन डेट का एनएवी प्लान एस का 53.75, ओके। सो 53.75 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है, ओके। 14,906.16 multiplied by 53.75, it comes to rupees 8,01,200
206.10. ओके, इधर तक क्लियर है। अभी ये क्वेश्चन में ध्यान से करना है। इन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 27, देयर वाज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं था, और लॉन्ग टर्म हम लोग को करना ही नहीं था क्योंकि उसका रेट भी नहीं दिया था और एग्जाम था। ओके, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो long term capital gains are there for this other number of units which we got on these dates. okay, ये जो बाकी के डेट्स है उधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, लेकिन कैलकुलेट करना ही नहीं है क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है. ओके, वी हैव टू थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड इन दिस क्वेश्चन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज देयर बिकॉज ये जो लास्ट यूनिट है, सी मतलब ये जो लास्ट डिविडेंड है उसके साथ यूनिट्स भी मिला ना, हम लोग ने फाइंड आउट किया, वो ये डेट पे मिला, दैट इज 24 मार्च. ओके, मार्च से लेके जुलाई तक 1 ईयर नहीं होता है. 1 ईयर से ज़्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, लेकिन ये तो 1 ईयर से कम है ना, सो इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है ये डेट के बीच में, इधर नहीं बनेगा बिकॉज दिस इज 2011, दिस इज 2012, so more than 1 year, but in these two dates there is a short term capital gain. see, अप्रैल से लेके मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 months, only 4 months. so it means in this point, at this point short term capital gain is there, so we have to find out the short term capital gain. ये डेट पे हम लोग को कितना यूनिट्स मिला है वो पहले चेक करना पड़ेगा, जो हम लोग ने फाइंड आउट किया हुआ है. ओके, सी ये डेट पे हम लोग को डिविडेंड का कितना यूनिट्स मिला है वो, दैट इज 1144.43, इतना यूनिट्स हम लोग को मिला है, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो 1144.43 यूनिट्स, राइट. अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, वो डेट पे कितना एनएवी, मतलब रिडम्पशन के डेट पे कितना एनएवी है उसका, और जिस दिन यूनिट्स मिला उसका डिफरेंस, राइट. सो एट द ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन एनएवी वाज 53.75, राइट, minus on the date where we are getting those units, that is 24th March 2012, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वही हम लोग का गेन होगा ना, क्योंकि ये क्या है रिडम्पशन का रेट, ये क्या है परचेज का रेट. ओके, सो इन मतलब इशू का रेट, सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग का गेन बन जाएगा. ओके, सो 5.65 पर यूनिट इतना गेन हो गया, ये लिख के दिखाना पड़ेगा. सो 53.75 रिडम्पशन रेट माइनस 48.10 इशू रेट, इसका डिफरेंस, उसके ऊपर 10% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 10% का. ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा. 1144.43 ये नंबर ऑफ यूनिट्स है. ओके, उसके ऊपर हम लोग को ये रेट का जो डिफरेंस है दैट इज 5.65 आता है डिफरेंस. ओके, उसके ऊपर 10% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा. 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखना है, दैट इज 646.60. ओके, 646.60, हाँ सही है, 646.60. ओके, अभी जस्ट माइनस करके रखते हैं, 8,01,006.206 माइनस, जस्ट माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं. ओके, सो डिफरेंस इज 8,05,59.50. ओके, अभी हम लोग को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स निकालना है 0.2%. ओके, ये हमेशा ग्रॉस रिडम्पशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर ही आता है. ओके, सो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमेशा ग्रॉस प्रोसीडिंग के ऊपर ही आएगा, ये सब माइनस करने के बाद नहीं आएगा. सो हम लोग का अमाउंट कितना है 8,01,206, उसके ऊपर 0.2%, ये याद रखना है आपको, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसके ऊपर ही आएगा, जो ग्रॉस वैल्यू रहता है ना उसके ऊपर, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2%, 2 डेसिमल तक ले सकते हैं. ओके, माइनस करना है, ये सारे टैक्सेस है तो माइनस ही होगा, माइनस, एक सेकेंड, 8,00,559.50 माइनस 10. ओके, so we are getting net proceedings that is 7,98,000 then 95, यानी कि 957.09. ओके, अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया था याद है, 1 लाख का. ओके, सो 1 लाख वॉज द इन्वेस्टमेंट. सो फाइनली नेट अमाउंट रिसीव्ड यानी कि नेट रिटर्न्स,
6,98,957.09. ओके, हम लोग को चाहिए रिटर्न परसेंटेज, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है. रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज 1 लाख. ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1 लाख. बड़ा आएगा परसेंटेज 698.96. 698.96. ओके, अभी ये जो है वो टोटल 124 मंथ्स का है, राइट, बिकॉज टोटल जो पीरियड रहता है उसका ही आंसर आता है. ओके, सो दिस परसेंटेज आर फॉर टोटल पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 124 मंथ्स, राइट. सो in the last question we had taken return like this and divided by 7 years because period was 7 years. Here period is 124 months. Okay, so this is per month. हम लोग को पर मंथ नहीं चाहिए, हम लोग को ईयर का चाहिए. सो मल्टीप्लाइड बाय 12. ओके, 67.64% आएगा आंसर. कैसे किया? 698.96. दिस इज टोटल फॉर 124 मंथ्स. आई डोंट वांट फॉर 124 मंथ्स, आई वांट फॉर 12 मंथ्स. सो मल्टीप्लाइड बाय 12 करके हम लोग का आंसर आ गया. इसका सिंपल वे मैं प्लान टी में दिखाऊंगी. अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, हम लोग प्लान टी में और इजी वे में करेंगे ये परसेंटेज कैसे करना है. ओके, सो लेट्स चेक फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर ऑफ प्लान एस एंड देन वी विल गो फॉर प्लान टी. सी 67.64%, so answer is correct. Now we will go for plan T. Basic information is same like plan S. So bonus plan, then here amount investment, then NAV 0, then number of units same. Amount invested is 1 lakh divided by face value यानी कि NAV 0. So number of units purchased that is 10,000 units. Same like plan S. पीरियड भी सेम ही आएगा क्योंकि सब लोग ने एक साथ ही इन्वेस्ट किया और सब लोग ने एक साथ ही रिडीम किया. सो 124 मंथ्स. ओके, आफ्टर दैट नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में किया था. सी बोनस का 3 ही रेशो दिया हुआ है, इधर भी वैसे ही करना है. नॉर्मली रेशो कैसे रहता है? 1:3, 1:4. इट मीन्स इफ यू आर हैविंग 3 यूनिट्स देन यू विल गेट 1 यूनिट एज अ फ्री, एज अ बोनस, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट. सो वी हैव टू टेक अ लॉजिक सेम लाइक दैट. जस्ट लुक एट दिस, इसके ऊपर देखना है और अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करना है. ऐसे देखा तो हम लोग को क्या लगेगा कि 5 यूनिट्स के अगेंस्ट 4 यूनिट्स मिलेगा. ऐसा नहीं है. ये केस में अगर आपके पास 4 यूनिट्स है तो आपको 5 यूनिट्स मिलेगा, ऐसा इंटरप्रिटेशन है. सो इसीलिए नेक्स्ट वाले को देखना है ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए. ओके, सो डेट्स मैंने लिखा हुआ है अभी. इफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स अपना 10,000 था. ओके, अगर आपके पास 4 यूनिट्स है तो आपको 5 यूनिट्स मिलेगा, ऐसा दिया हुआ है. ओके, सो हमारे पास टोटल 10,000 यूनिट्स है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हम लोग को कितना यूनिट्स मिलने वाला है. ओके, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4, 12,500 यूनिट्स मिलेगा. ओरिजिनल 10,000 प्लस 12,500 का न्यू यूनिट्स यानी कि बोनस वाला 22,500 यूनिट्स. जस्ट कैरी फॉरवर्ड दीज यूनिट्स. आफ्टर दैट रेशियो इज 1:3 यानी कि 3 यूनिट्स अगर आप लोग के पास है तो आप लोग को 1 यूनिट फ्री का मिलेगा. आपके पास टोटल 22,500 यूनिट्स है ऑलरेडी, तो हम लोग को देखते कितना यूनिट्स मिलेगा. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, 7,500 फ्री का मिलेगा. ओके, टोटल 22,500 प्लस 7,500 इट कम्स टू 30,000 यूनिट्स टोटल हम लोग के पास हो गया. Just carry forward this 30,000 units. After that ratio is 1:4. If you are having 4 units you will get 1 unit as a free unit यानी कि बोनस. और हम लोग के पास टोटल 30,000 यूनिट्स है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कितना यूनिट्स मिलेगा. 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 it comes to 7,500 units. So total 30 plus 7,500 it is 37,500 units. Okay, अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है एनुअल रिटर्न्स. सो नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 37,500 यूनिट्स, राइट. उसके बाद NAV पर यूनिट उसका प्लान टी का देखना है. प्लान टी का देखो कितना है 22.98. ओके, 22.98. So multiplied by 22.98 rupees. Okay, 37,500 multiplied by 22
22.98, it comes to 8,61,750. ओके, अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करना है, तो इधर भी वही है कि ये जो लास्ट डेट है मतलब रिडम्पशन के पहले वाला 24 मार्च 2012, ये डेट पे हम लोग को कितना यूनिट्स मिला था, सी ये डेट पे हम लोग को कितना न्यू यूनिट्स यानी कि बोनस वाला कितना मिला था, 7,500 यूनिट्स, इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। सो 7,500 यूनिट्स मेरे को मिला था। अभी हम लोग ने क्या किया था, इधर रिडम्पशन डेट और इशू डेट का डिफरेंस, लेकिन मुझे बताओ इधर एनएवीज तो दिया है लेकिन बोनस का हम लोग कुछ पैसा देते हैं क्या? ओके, bonus shares are totally free shares, so don't consider this NAV because this is not a issue rate, it is just given. Okay, so total redemption rate will be the gain because bonus rates are free, so issue का कुछ नहीं आएगा, सिर्फ रिडम्पशन का टोटल गेन हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए इधर डिफरेंस नहीं लेना है, इधर डायरेक्टली हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, चाहिए तो मैं इधर लिख के रखती हूँ 0, क्योंकि बोनस फुकट का रहता है, फ्री का रहता है। ओके, सो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 22.98, उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा परसेंटेज 17,235। ओके, माइनस करना है हम लोग को, गेन है वो, उसका टैक्स माइनस करना है। ओके, 8,61,750 माइनस 17,235, वी आर गेटिंग अमाउंट 8,44,515। ओके, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.2% हमेशा ग्रॉस पे आता है, सो ग्रॉस अमाउंट इज 8,61,750 के ऊपर 0.2% आएगा, 8,61,750 के ऊपर 0.2%, दैट इज 17, राउंड अप नहीं किया तो भी चलेगा, जितना है उतना ले लो, इतना ही आंसर। 844,515 माइनस 1723.5, it comes to net proceedings, that is 8,42,791.50. initial investment was, do you remember, that is 1 lakh, so माइनस करेंगे 1 लाख तो अपना आंसर आएगा टोटल रिटर्न 7,42,791.50। ओके, जस्ट कैलकुलेट करना है हम लोग को परसेंटेज, सो 742,791.50 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज 1 लाख, सो 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे, दैट इज 742.79, 742.79% आया, लेकिन ये टोटल 124 मंथ्स का है। सो ये इजी वे में आपको बता रही हूँ कैसे करना है, वो प्लान एस में भी आप लोग ये फॉलो कर सकते हो, इतना परसेंट है, राइट, दैट इज फॉर 124 मंथ्स। हम लोग को एनुअल रिटर्न यानी कि पर एनम एक ईयर का चाहिए, एक ईयर में कितना मंथ्स रहता है, 12 मंथ्स रहता है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 742.79, दिस इज फॉर 124 मंथ्स, देन व्हाट फॉर 12 मंथ्स, ओके, 742.79 multiplied by 12 divided by 124, answer is 71.88%, so per annum का आंसर आया 71.88% per annum। ओके, चेक करते हैं सही है कि नहीं है, सी 71.88%, exact same answer, exact correct answer। now last plan, okay, last plan is plan U, ओके, ग्रोथ प्लान, ग्रोथ प्लान उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें ना कुछ एक्टिविटीज़ होता नहीं है, मतलब डिविडेंड नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता, हम लोग को डायरेक्टली जितना इन्वेस्ट किया था इनिशियली और जितना हम लोग को रिडीम करना है वो डेट पे कितना अमाउंट मिलेगा वो देखना है। ओके, सो हियर नो डिविडेंड नो बोनस इज देयर, जस्ट वी हैव टू टेक द नंबर ऑफ यूनिट्स एट द बिगिनिंग एंड नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड, कितना हम लोग को मिल रहा है, मतलब टोटल वैल्यू कितना हम लोग को मिल रहा है, सॉल्व करने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, सो ग्रोथ प्लान, अमाउंट इन्वेस्टेड, face value, then number of units as we have calculated in earlier 2 plans। okay, फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज दैट इज 10,000, उसके बाद पीरियड भी सेम ही आएगा 124 मंथ्स। अभी डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे एनुअल रिटर्न परसेंटेज पे, क्योंकि इधर डिविडेंड भी नहीं है और बोनस भी नहीं है। ओके, सो देयर इज नो डिविडेंड नो बोनस इन दिस प्लान, सो वी विल डायरेक्टली गो फॉर एनुअल रिटर्न परसेंटेज। सो नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ भी चेंज नहीं है क्योंकि डिविडेंड नहीं है, बोनस नहीं है, सो जो इन्वेस्ट किया था वही है मेरे पास, सो जितना है उतना लिखा। अभी एनवी चेक करते हैं हम लोग प्लान यू का रिडम्पशन के डेट पे। ओके, 82.07 रुपीज़
मल्टीप्लाई करना है. ओके, let's check. 10,000 multiplied by 82.07. Number of units will not change, it will remain same as we have purchased because there is no dividend, no bonus. Okay, so gross amount is this much. Now शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इधर नहीं बनेगा क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कब किया था, स्टार्टिंग में, दैट इज 2002 में, और रिडम्पशन कब कर रहे हैं हम लोग, 2012 में. सो बीच में कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं है. ओके, सो देर इज नो ट्रांजैक्शन इन बिटवीन, दैट इज इन 2002 फ्रॉम 2002 टू लेके हम लोग 2012 तक कुछ भी ट्रांजैक्शन बीच में नहीं है. सो देर इज नो ट्रांजैक्शन इन बिटवीन, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. दिस इज टोटली अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज एग्जेम्प्ट. सो हम लोग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करना ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग STT पे जाएंगे, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा. 0.2%. ओके, ग्रॉस पे ही लेते हैं ना हम लोग, वही लिया मैंने भी, मल्टीप्लाइड बाय 0.2%. लेट्स चेक, परसेंटेज आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे कितना आएगा. सो नेट अमाउंट 8,19,058.60. इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डू यू रिमेंबर, दैट इज 1 लाख. नेट रिटर्न देखते हैं, 7,19,058.60. चलो परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. 7,19,058.60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख multiplied by 100 divided by 1 lakh, it is 791.06. 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है. ओके, अभी हम लोग इजी वे से ही करेंगे. 719.06%, that is for 124 months. I want per annum, it means for 12 months. So what for 12 months, 719.06 multiplied by 12 divided by 124, that is 69.59%. 69.59%, that is per annum return, annual return per annum. Okay, let's check the answer. See, 69.59. ओके, एग्जैक्ट सेम आंसर 69.59. अभी अगर इसमें बेटर प्लान कौन सा ऐसे अगर पूछा रहता, सो बेटर प्लान इज दिस सेकेंड प्लान, दैट इज बोनस वाला प्लान. ओके, बोनस वाला प्लान हम लोग का बेटर रहता है. पूछा नहीं है, शायद कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बिकॉज प्लान टी यानी कि बोनस वाले का ज़्यादा रिटर्न है ना, परसेंटेज. सो प्लान टी इज बेटर. So here we have completed illustration number 28. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics, and also check the Telegram group because I will give notes over there after completing this topic. Okay, thanks for watching friends.